One of the most inspirational people I know in my life is Dr. Aisha Hidayat. Not only is she my therapist, she's also helped hundreds of people I know. And besides treating people, besides being a therapist, she also runs a very incredible institute for special needs kids. And these are kids with multiple issues. And mashallah, these people, the way they handle those kids in this institute, it's fantastic, it's an inspiration. And she's my role model in so many ways. So thank you so much for giving us time today, Dr. Aisha. My pleasure. Can you tell us a little about Dimensions? My Dimensions, I would say, is my passion, and I think a sacred trust and a commitment towards God that जो हमारे मुआशरे का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिसको हम differently abled people है. This is a new term that we use rather than any other term because they have other abilities but they are same like us. So उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है and I feel कि उनको एक functional and productive part of the society बनाना है. So basically our motto is also like thinkability, not a disability. Oh wow! You see, there is a strong message in this motto. Thinkability, not disability. That's really good. That's really good. And basically, Dimensions is an institute that I would say is for autism, children for multiple impairments, learning disabilities. We provide psychological services. We deal with physical rehabilitation as well, and we do diagnostic assessments over there as well. Oh wow! And we provide psychological counseling for the adults, for the kids, marital counseling, and so on. It goes on and on and on. Besides, because मैं तो आयशा को ऐसे भी जानती हूँ because मैं through different stages of my life, wherever I needed help, I went to her because it's very important to tackle this mental health issue. हम सब it's in our society it's looked down upon and people think कि अच्छा तुम्हें अगर therapist के पास जाना है तो तुम शायद पागल हो. That's not the concept. I've gone through various stages in my life where I've had issues, where I was down. I used to go and meet Aisha. She's been like my best friend throughout these 20 or so years of my life. So that's another thing. Acha, Aisha, what made you start Dimensions? Actually, I think I started working in this field I've been in this field for the last 23 years now. 23 साल पहले मैं अगर देखूं तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे अवेलेबल थे और गवर्नमेंट लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं. सारे बच्चों को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फिक्स किया जाता था जो मेन 4 बेसिक कैटेगरीज होती थी. और वो बच्चा जिसको आप कहते हैं कि बहुत सी डिसेबिलिटीज एट द सेम टाइम अवेलेबल हो, उनको ये कह दिया जाता था कि जी इनका कोई ज्यादा होप नहीं है बिकॉज वो बहुत चैलेंजिंग होते थे एंड पीपल डिडंट वांट टू वर्क दैट हार्ड ऑन दोस किड्स. तो जब मैं पेरेंट्स से मिलती थी तो आई ऑलवेज थॉट कि कि एक सी जगह होनी चाहिए जहां पे ऐसे चैलेंजिंग केसेस लेने चाहिए. सो दैट वाज द टाइम आई थॉट अबाउट नॉट अ स्कूल एंड इंस्टीट्यूट बिकॉज द बर्थ ऑफ डायमेंशन वाज फॉर द कांसेप्ट कि हमारे अंडर द सेम रूफ सारे प्रोफेशनल्स, द थेरेपिस्ट, द डॉक्टर्स एंड द कंसल्टेंट्स वुड बी अवेलेबल और बच्चों को कैटेगराइज करके किसी कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा बल्कि हर डॉक्टर वहां मौजूद होगा उस बच्चे के लिए अपने आप को टेलर मेड करेगा, उसका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाएगा और उसको हर वो थेरेपी प्रोवाइड करेगा जिससे वो बच्चा फंक्शनली एक यूजफुल पार्ट ऑफ द सोसाइटी बन सके. सो दैट वाज द बेसिक एम. आयशा, ये भी तो होता है ना कि पीपल गेट इनटू डिनायल. अगर बच्चे थोड़े से ऑटिज्म या कोई स्पेशल नीड्स या तो पेरेंट्स अक्सर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और वो ट्राई करते हैं कि नॉर्मल किसी तरह स्कूल में फिट हो जाए बच्चे. देन उनका ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है ना चीजों का. बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि देखिए मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं और फिर जब फीसेस दे के उनको एक लेवल तक ले जाते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट्स देने की बारी आती है तो डेफिनेटली दे कांट डू दैट. देन दे कॉल द पेरेंट्स एंड से कि गो एंड गेट सम स्पेशल हेल्प फॉर देम. बट इतना सा टाइम जो वेस्ट हो गया तो वो उस वजह से फिर जब बच्चे उसके बाद हमारे पास आते हैं तो उनके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ज्यादा होते हैं कमिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कूल एंड नाउ व्हाई एम आई हियर. सो अगर उनकी बेस के शुरू में ही अवेयरनेस के थ्रू उनको गाइडलाइन देके उनको प्रिपेयर करके बाद में मेन स्ट्रीम किया जाए so things can be much better because then they feel accomplished. They are part of the class. So मतलब ये कि अगर आप पहले एक प्रॉपर स्कूल में जहाँ पर या इंस्टीट्यूट में जहाँ पर इसको डील कर सकते हैं प्रॉपर्ली वहाँ जाए उसके बाद they can be channelized into regular schools once you know what to do. It's not the other way around.
that's more traumatic for the kids. बिल्कुल सही कह रही. अच्छा, and आपको और क्या सबसे बड़ा challenge क्या face हुआ dimensions? I think I would like to take an opportunity. इस प्लेटफॉर्म से मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे और हमारी जनरल पॉपुलेशन के लेवल पे इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क होने की ज़रूरत है. उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड सच डिसेबिलिटीज़ एंड हाउ टू डील विद सच किड्स जो है हमारे जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं. हम अपने लेवल पे तो बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करवाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी करवाते हैं, बट आई थिंक द थिंग दैट लैक्स इज दैट अ गवर्नमेंट लेवल पे मोर थिंग्स शुड बी डिजाइन लाइक दिस ताकि इस अवेयरनेस को हम बढ़ा सकें. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेन स्ट्रीम. आई थिंक मेन स्ट्रीम का एक तो कॉन्सेप्ट और प्रोटोकॉल्स जो फॉलो किए जाते हैं वो हमारे आजकल के स्कूल्स में नहीं प्रोवाइडेड, बट एट द सेम टाइम मेन स्ट्रीम अगर हम अपने बच्चे को करवाना चाहें तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. पीपल आर नॉट कोऑपरेटिव इनफ. सो गवर्नमेंट लेवल पे अगर एक मस्ट कर दिया जाए इन स्कूल्स के लिए कि जी आपने एक कोटा रखना है फॉर द मेन स्ट्रीम किड्स ऑफ दीज टाइप, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और बच्चों को एक अच्छी इन्वायरमेंट भी हम प्रोवाइड कर सकेंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम वर्क अमंग द प्रोफेशनल्स. एट टाइम्स प्रोफेशनल्स अपने आई वुड नॉट से विद ड्यू रिस्पेक्ट कहीं पर्सनल गेन्स की वजह से प्रॉपर रेफरेंस नहीं देते, और मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने पता नहीं कितने CT स्कैन, MRI और बहुत सी चीज़ें करवाई होती हैं, हालांकि उनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. कुछ केसेस हैं जहाँ पे उन्होंने एपिलेप्सी की दवाई फॉर द लास्ट 5 years खाई भी है और उनका EEG कभी नहीं हुआ, उनको फिट्स भी नहीं है, एंड दैट इज द रिजल्ट जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है. सो आई वुड फील कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाती है पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए, जिसके बाद वो बच्चे को ऑब्जर्व करें और राइट टाइम पे एक कंसर्न प्रोफेशनल के पास लेके जा सकें. जो इससे अगला चैलेंज मुझे लगता है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सच पीपल है, बिकॉज मैंने अपने सेंटर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने BA किया है, जिन्होंने FA किया है, बट गवर्नमेंट लेवल पे कहने को तो 2% कोटा है, लेकिन बच्चों को ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, और अगर कोई माइनर सी फॉल्ट है उसके अंदर उन बच्चों को डाल दिया जाता है, बट जो एक्चुअल हक वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं दी जाती. सो आई फील कि गवर्नमेंट लेवल पे ये कोटा सिस्टम थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई रेस्टोरेंट जो जगह है वो इनको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. एंड लास्टली आई वुड से हमने इन लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं दी है. गवर्नमेंट लेवल पे जितने मॉल्स बनते हैं, नए पार्क्स बनते हैं, हर जगह बनती है, इन बच्चों के लिए कोई रैंप्स हो या मॉल्स में जो लिफ्ट्स होती हैं अलॉन्ग विद द रेलिंग्स, बिकॉज ऐसे बच्चों की जनरलाइजेशन और सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स के लिए ये एक ऑर्डियर है टू टेक देम आउट, जिसकी वजह से ये बच्चे और ज़्यादा एक सोशली आइसोलेशन में चले जाते हैं. तो आई वुड वांट कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ज़रा अच्छा एक्शन ले. और आपकी मोटिवेशन क्या है to continue, because this is very tough, this entire challenge that you've taken on is very tough. देखिए मेरी मोटिवेशन आखिर तो बहुत सिंपल है. आई थिंक अ स्माइल, अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस ऑफ अ चाइल्ड, lot of prayers and gratitude shown by the parents. The first time a child speaks, Wow, first time a child takes their first step. एक स्पेसिफिक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. हमारे पास एक बच्ची आई थी व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 8 years और सेरेब्रल पैल्सी की बच्ची थी. उस बच्ची ने हमारे साथ काम किया. उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट थे, और ये एक पैगाम है उन पेरेंट्स के लिए भी कि आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, बिकॉज विद ऑल दोज चैलेंजेस एंड ऑल दोज फिजिकल डिसेबिलिटीज उस बच्ची ने आज हमारे पास BA कर दिया है, और वो हमारे पास एज टीचर्स असिस्टेंट काम कर रही है, और माशाल्लाह शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी पेरेंट्स हु कम अराउंड. एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड कि ये इस तरह का काम है कि जब तक आपका कनेक्शन अल्लाह से ना हो और जब तक आपकी एक स्पिरिट ना हो, जो आयशा का मुझे पता है कि वो दिल से किस तरह बच्चों के लिए मतलब सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है. अल्लाह की उसमें मतलब अल्लाह की मोहब्बत में ये सब चीजें बहुत जरूरी है, वरना अगर आप एज अ जॉब लेते हैं nobody can do this as a job unless your heart is in it. So I think we owe a lot to people like Aisha, and you're a source of constant inspiration for us, Aisha. Thank you so much.